Morning, sir. Good morning, beta. Good morning. Good morning, sir. Children, let us start. Okay. See, children, today. Okay. Are you there? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Beta, yes. Okay, children. So, children, just pay attention. See, I have a very important information for you. See, today we are going to learn about a very important theory. First of all, listen carefully and maintain silence. Otherwise, I will lock down. I will lock down. Hello? Yes, sir. Yes. See, the theory name is, first of all, let me introduce. The theory name is, actual name is molecular orbital theory. Okay, children? In short, what we will term in short form? MOT theory. MOT. No voice, not clear voice is coming for this participant. But in short, we can say MOT. Yeah, in short, please keep your mind in little bit nearby so that you can respond properly. Simran, are you there? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. So, children, the theory, what is the name of theory? Molecular orbital theory. In short, what we will write? MOT. Okay, see, how many things we have to learn? First of all, we have to learn theory. Okay? Yes, or sir. no? Yes, sir. Then we have to learn Yes. some exceptional cases. Yes, sir. Yes, sir. Then we have to learn skill. Skill Yes, means sir. importance. How we are going to use this theory. Yes, sir. Okay. Okay? And let me introduce that this is old theory or modern theory. Modern theory. This latest modern theory for chemical bonding. Yes, sir. After learning this theory, what we will get? What will be the final objective? हमको लास्ट में मिलेगा क्या? तो हमको मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर बस, और कुछ नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा बेटा? Bond order. And what do you mean by bond order? The number of bonds. हाँ, माइक को सामने रख के कोई अच्छा से जो बात कर सकता वो बात करो बेटा. माइक एकदम अपडेट रखो. The number of bonds found between two atoms. हाँ, ओके. In a molecule. तो हमको नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिलेंगे बेटा. ओके. Yes, sir. Okay. अच्छा, आपको मालूम है कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? सर घट जाएगा. बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा सर. बढ़ जाएगा. तो कितना खूबसूरत इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ. देखो कितना खूबसूरत इंफॉर्मेशन. इसको याद रखोगे कि अगर इफ की बात कर रहे हैं, इफ बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा BS मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ वो क्या होगा? हाँ, इंक्रीज या इंक्रीज. बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज. ये याद हो जाएगा आपको? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट. गुड, वेरी गुड, नाइस पार्टिसिपेशन. ओके बेटा. तो हाँ, सी
first directly I will come to the skill first. When Yes, when sir. you will be able to know the skill, and when you will able to solve it, then immediately you will come to the theoretical part. Immediately you can learn the theory. Okay, okay, children. Okay, sir. Yes, sir. Okay. This is my technique how to make learn MOT, matlab molecular orbital theory. And MO2 is different. This is okay. This is some oxide. It may be peroxide or any oxide. This is oxide. MO2 Yes, sir. and MOT. Okay. So there are two things. MOT, MO2. So MO2 नहीं है actually. MOT. और ये MOT नहीं है, ये है MOT. MOT. हाँ, कोई एक दूसरे को चिढ़ाओगे नहीं. ओके, ये टर्म का मिसयूज नहीं करोगे. ओके, ये है MOT नहीं है, MOT. और ये MO2 है. कोई नहीं चिढ़ाओगे किसी को MO2, ऐसा नहीं बोलोगे. ठीक है, चलिए. हाँ सर. हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. और देखो, ये जो जितने भी बॉक्स हैं, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि बॉक्स का मतलब ऑर्बिटल होता है बेटा. ऑर्बिटल. Orbitals. हाँ, ऑर्बिटल मतलब ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं. Yes, sir. हाँ, तो ये जो मैं जितने भी ऑर्बिटल्स बना रहा हूं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं. मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं वो बता रहा हूं. Yes, sir. Yes, sir. एटम के अंदर कहाँ रहते हैं वो आपको मालूम है. एटम के Yeah. अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो S में रहते हैं, P में रहते हैं, D में रहते हैं, F में रहते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बट मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं ये किसी को नहीं मालूम. आज मैं उसकी जानकारी आपको दे रहा हूं. Yes, sir. ओके, और मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं? वेयर द इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन ए मॉलिक्यूल. सो आई एम गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट orbitals which are present in a molecule. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay, so these are some orbitals, children. Single box, and again 2 box, again single box, 2 box, single box. Okay, so don't get confused with atomic orbitals. These are orbital present in a molecule. 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 And molecule also condition is applied. It is for only diatomic molecule. Atomicity 2 होना चाहिए. Yes, sir. ऐसे ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हो गए? डायटोमिक मॉलिक्यूल O2, N2. डायटोमिक मतलब जिसका एटॉमिसिटी Yes. स्किल 1 में मैंने पहले इसीलिए पढ़ा दिया था एटॉमिसिटी. हाँ, तो ये sir. देखिए, हाँ, जैसे H2, O2, N2. समझ गए? Yes, sir. एटसेट्रा. ठीक है, और सब जगह 2 लगा देते हैं. यहाँ पर 2 नहीं लगाया क्योंकि एक एटम कार्बन है, एक एटम ऑक्सीजन. ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि इसका एटॉमिसिटी 2 है. ओके, Yes, sir. Yes, sir. तो theory restricted because this is the initial stage. Then again I will go for triatomic and tetraatomic. Did you understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so you should know difference between atomic and molecule. Atomic orbital. Do you know atomic orbital means it is guided by one nucleus or more nucleus? Atomic orbital. One nucleus. One nucleus. And one nucleus. In standard for nucleus is center. Center. So atomic orbital S, P, D, F all are guided by one nucleus or more nucleus. One nucleus. One nucleus. So it is monocentric. And molecular orbital is having one nucleus or more than one nucleus. More than one. So molecular orbitals are polycentric. Okay.
Yes, sir. Okay. In molecular orbital, children, two types of molecular orbitals are there. In molecule, there are two types of orbitals are there. Molecular. In a molecule, one orbital Yes, which sir. is responsible for bond formation. They are telling that we will form a bond. And one type of molecular orbital is there. They are known as anti-bonding molecular orbital. Anti-bonding. They will not form bonds. They will not form because their energy is very high. Okay, sir. Sir, can you Okay. give an example of anti-bonding? Everything I will give, everything. First of all, you understand that who will help in bond formation? The bonding electron. Molecular orbital. Tell the full name. The bonding molecular Good. orbitals. And who will not try to form the bond? Anti-bonding Anti-bonding molecular molecular orbitals. orbitals. Okay. So see, for bonding orbital, we will use one green color, and for anti-bonding, because they are not responsible to form bond, so we will use red color. Children, danger. They are not able to form bonds. Okay. Yes, sir. Okay. So Yes, now sir. I am giving you one diagram. Yes, How sir. this diagram came? Okay. How we have written like this, everything I will discuss in theoretical part. But see, this is the situation. In a Yes, sir. diatomic molecule, children, in a diatomic molecule, see, 10 orbitals are there, 10 molecular orbitals. In that, see, these Yes, are the sir. names. These are the names. Sigma means sigma is used for bond also, and sigma is used for name also. We are using here name. It is not sigma bond. It is the name. It is not only sigma. Yes, sir. You understand? Yes, Hello? sir. It is not only Yes, sir. only sigma means sigma bond. But when I'm writing sigma 1s Yes, sir. b, it means it is the name of the orbital. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक बात क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है. मैं पूछूं डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं? ऐसा ऑप्शन आ जाए तो कितना दोगे? बताओ. आंसर कितना दोगे? गिनो 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 गिनो. Diatomic. गिना. Diatomic 2. कितना गिना बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ओके. Yes, sir. ओके. अच्छा देखिए, मैंने इनका एनर्जी ग्राफ भी बनाया है. ऐसे दिखा रहे हैं कि एनर्जी ऐसे बढ़ते जा रहा है. तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, दोनों में से किसका एनर्जी ज्यादा है? Sigma 2s. 2s कहां पर आया? ये 2pz है. सर थोड़ा ब्लर आ रहा है स्क्रीन. अच्छा, स्क्रीन ब्लड आ रहा है थोड़ा. अभी ठीक है सर, ठीक है. हाँ ठीक. आप ठीक है सर, हल्का. ओके. एनी हाउ, सो दिस इज द एनर्जी डायग्राम. ये बहुत मेहनत से ये मैंने डायग्राम बनाया है, बहुत लंबा उसके पीछे एक थ्योरी है, लेकिन मैंने आपको क्या कहा? फर्स्ट आई विल मेक यूज, देन ऑटोमेटिकली यू विल अंडरस्टैंड एनीथिंग. So see, the green color bondings are there. Okay, they will help in Yes, bond sir. formation. And the red color, which are made, I had used the subscript. Okay, not subscript, a symbol which is used for anti-bonding. Okay, which is used for Yes, sir. anti-bonding. You can use this either red signal, or instead of red signal you can write. See, instead of this red signal you can write A also, anti-bonding. And instead of green color you can use B also. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So now मेरे पीछे पीछे नाम पढ़ो. सिग्मा 1s बॉन्डिंग. Sigma 1s माइक bonding. के पास आओ और बोलो. So सिग्मा 1s बॉन्डिंग. Sigma 1s bonding. सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग. Anti-bonding.
Sigma 1s anti-bonding. Anti-bonding. sigma 2s bonding, Sigma 2s 2s bonding. Bonding. sigma 2s anti-bonding, Sigma Sigma 2s 2s anti-bonding. anti-bonding. pi 2ps bonding, Pi Pi 2ps bonding. bonding. pi 2py bonding, Pi Pi 2py Y bonding. bonding. sigma 2pz bonding, Sigma Sigma 2pz 2pz bonding. bonding. pi 2ps anti-bonding, Pi Pi 2px 2px anti-bonding. pi 2py anti-bonding, Pi Pi 2py anti-bonding. anti-bonding. sigma 2pz anti-bonding. Sigma 2pz Z anti-bonding. anti-bonding. याद रहेगा नाम सब, ये धीरे धीरे Yes, यूज sir. करोगे, हाँ, यूज करते जाओ, नाम याद होते जाएगा। यानी टोटल सर मॉलिक्यूलर हर ऑर्बिटल में ऑर्बिटल का कुछ पूछ रहे हो बेटा, यस सर बोलो। सर हर ऑर्बिटल का एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिट दोनों होगा। डेफिनेटली, ओके ठीक लेकिन है। सर यहाँ पे आप पाई 2px और पाई 2py एक मतलब बॉक्स में लिखे हैं, लेकिन सर 2πz अलग से क्यों लिखे हैं सर? सिग्मा 2πz क्योंकि जिसको मैंने एक साथ लिखा है, इसका मतलब है कि उनका एनर्जी सर। सेम है, उनका एनर्जी सेम है। ओके यस एनी फर्दर क्वेश्चन? नो सर थैंक यू हाँ, सर। क्योंकि मैंने इधर देखो एनर्जी दिखाया ऐसे करके कि एनर्जी ऐसे बढ़ रहा है। यस हाँ, तो जिसका साथ में लिखा मतलब उनका एनर्जी सेम है। समझ में आई बात? हाँ सर। यस सर ओके अच्छा, याद रखना ये जो ऑर्डर है ना बेटा, ऑर्डर ये अप टू 14 इलेक्ट्रॉन्स sir. तक काम करेगा। ये वाला जो डायग्राम है, पहला वाला, द फर्स्ट डायग्राम, फर्स्ट एनर्जी लेवल, we will be using only up to 14 electrons. Yes, sir. यस सर If it is a more than 14 electrons, then we will use slide. There is a slide change and you have to find out where is that change. I will not going to tell you where is that change. If it is more than 14 electrons, if it is more than 14 electrons, tell me where is that change. Tell me, observe it carefully. सिग्मा 2p सर सिग्मा 2pz पाई 2px और Yeah. 2py के See, पहले आ गया। up to first okay, second okay, third okay, fifth okay. यस सर Only problem is that 2pz bonding came just before here. Okay, children. बिफोर 2px Yeah. पाई हाँ. 2px Who has created problem? Who has created problem? Tell me. Sigma 2pz. सिग्मा 2 ये ऑर्डर एकदम सही रहता। बदमाशी कौन किया? कौन बॉन्डिंग, कौन सा ऑर्बिटल बदमाशी किया है? सिग्मा 2pz हाँ, वो इसको यहाँ बीच में रहना चाहिए था। तो उसको बोला ना Yes, sir. कि भाई ऑर्बिटल में हम ना 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भरेंगे। आई एम गोइंग टू फिल मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो 2p Yes, sir. जो सिग्मा 2pz बॉन्डिंग था, बोला वेट, लेट मी चेंज माय पोजीशन। डिड यू अंडरस्टैंड? यस Yeah. सर। या ऐसा होता है बहुत बार। अब जैसे कोई है, मैं घर में हूँ, नॉर्मल वे में हूँ, तो कोई बोला चलो जल्दी चलो, हम लोग को कहीं बाहर जाना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वेट रुको, मेरे को एक बार थोड़ा सा अच्छा से ढंग से कपड़ा उपड़ा पहन लेने दो, थोड़ा बाल वाल झाड़ लेने दो, थोड़ा सा हाथ मुंह धो लेने दो। बोलेंगे कि नहीं Yes, बोलेंगे? Yes, sir. यस सर हाँ, तो ये ऑर्डर एकदम काम कर रहा था। कब तक? 14 इलेक्ट्रॉन तक। जैसे ही पता चला Yes, 14 sir. इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो ये जो कौन था ये सिग्मा Sigma 2px के आगे सिग्मा घुस गया। 2pz बॉन्डिंग बोलता है वेट रुको, मेरे को थोड़ा इधर आ जाने दो। जरा सा पोजीशन चेंज हुआ बेटा, इसमें टेंशन लेना नहीं है। मूवी देखो, आइनॉक्स में मूवी देखने जाते हैं, थोड़ा पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगा क्या? No, sir. लेकिन सर ये पोजीशन चेंज क्यों किया? बता दूंगा। Yes. इसीलिए तो बोला हूँ, पहले स्किल बता दूंगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि मैंने पोजीशन क्यों चेंज किया है। ओके सर हर चीज का रीजन होता है। कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, मैं एक जगह बैठा Yes, हुआ sir. था एयरपोर्ट में, अपना फ्लाइट का वेट कर रहा था। तब तक एक तो कोई आदमी आया, ठीक मेरे बगल में बैठ गया। यस सर
तो बगल में बैठ गया तो मेरे को कहा था कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था मेक ए डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. मैंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो जो आदमी आया होगा वो जरूर सोचा होगा यार ये आदमी पोजीशन क्यों चेंज कर लिया। तो मैं क्या उसको रीजन बताने जाऊंगा? distance अपना काम करूंगा, फ्लाइट पकड़ूंगा कि उसको रीजन बताते रहूंगा? फ्लाइट Flight पकड़े। पकड़ेंगे। तब फिर जस्ट मैंने बता दिया है कि यहाँ पर एक पोजीशन चेंज हो रहा है, कोई ना कोई तो कारण होगा ही। Okay. हाँ, तो वक्त आने पर मैं हाँ, सब सर। बता दूंगा कि क्यों चेंज किया। रिपल्सन के चलते चेंज हो रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, समझ गए? कार के अंदर में एक Okay. लिमिटेड आदमी तक बैठना चाहिए। हाँ सर। हाँ, जरूरत से ज्यादा बैठोगे हाँ पुलिस पकड़ेगा। चालान ठोकेंगे। Yes, sir. उम्मीद करते मेरा बात समझ में आ रहा है। Yes, हाँ सर, sir. समझ गया। हाँ, तो हमको आपको खाली ये याद रखना है कि वो पोजीशन कब चेंज हो रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन से पहले या 14 इलेक्ट्रॉन से बाद? बाद में। 14 बाद में इलेक्ट्रॉन चेंज के हो रहा है, बाद। बस इतना याद रखो पहले। ओके सर। हर चीज का रीजन आपको मिलेगा, हर चीज का रीजन। लेकिन Yes. अभी जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये है कि ये पोजीशन कब चेंज हुआ, 14 इलेक्ट्रॉन से पहले या 14 इलेक्ट्रॉन से बाद? 14 इलेक्ट्रॉन के बाद। इलेक्ट्रॉन के बाद। बस इतना याद रखो और फिर इस्तेमाल करो। इसको जब इस्तेमाल करने लगोगे सर। ऑटोमेटिक सारा चीज क्लैरिटी आ जाएगा। मैं कितनी बार बोल रहा हूं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। Yes, sir. ठीक है सर। इस्तेमाल तो करो बेटा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। देखो एनी हाउ इतना मैं बोल सकता हूं कि ये जो ग्रीन कलर वाले जो ऑर्बिटल्स हैं बेटा, मॉलिक्यूलर, Yes, ये sir. बॉन्ड को, ये दोनों एटम को सटाने की कोशिश करेंगे। और जितने भी ये जो रेड वाले, जो रेड जोन देख रहे हो, रेड जोन, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, नामे में दूर करने की लिखा हुआ है कोशिश एंटी बॉन्डिंग। वो कभी नहीं चाहते हैं कि bond दोनों बन- एटम आपस में जुड़े। यस सर। Yes, sir. उनको दूर क्योंकि करने की कोशिश करें। कोशिश नहीं, वो लोग तोड़ ही देते हैं, क्योंकि उन लोग का एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होता है। और हाई होता है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे इतना जल्दी ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करते हैं, और जो ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो अरे बाबा कहीं रुकोगे तब तो बॉन्ड बनेगा। Yes, हाँ sir. सर। तो मैं कितनी बार बोल रहा हूं, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है। यस सर। उम्मीद करते समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, तो मैं अब देखिए, पहले तो आपका मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यू शुड लर्न दिस ऑर्डर एंड you should know this the small order change after 14 electron because of overload बेटा, overload सब जगह ये ओवरलोडिंग का काम होता है। हम लोग का कभी कभी देखते होंगे बिजली का स्विच ऑफ ओवरलोड होने के चलते, ज्यादा चीज लगा दीजिए, देखिए फटाक से फ्यूज उड़ गया। Yes, sir. हाँ, आप बोलोगे क्यों उड़ गया? ओवरलोडिंग हो गया। ओके। बढ़ जाऊं? यस सर। ओके, चलिए अब मैं देखो इस्तेमाल कर रहा हूं बेटा। ये सारा चीज खेल किसके लिए मालूम है? बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बेटा। बॉन्ड ऑर्डर हमको ये पता करना पड़ेगा कि दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है। तो H और H के बीच में कितना बॉन्ड है बताओ तो? One bond. वन बॉन्ड है, लेकिन ये वन बॉन्ड किसने दिया था? वीबीटी ने, Yes, sir. लुबिस ने। समझ रहे बात को? हाँ सर। Yes, Yes. sir. Yes sir. लेकिन ये लोग का डीमेरिट क्या था मालूम है? ये लोग का डीमेरिट ये था कि ये लोग जब भी नंबर दे रहे थे तो होल नंबर दे रहे थे, या तो 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3, कोई फ्रैक्शन में दे रहा था आंसर। नहीं सर। Yes, लेकिन sir. हम लोगों ने बहुत जगह देखा था कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था, 1.33, 1.5 आ रहा था कि नहीं? हाँ सर। याद आ रहा है आपको? कार्बोनेट का Yes, हम लोग sir. बनाए थे या इस तरह से, तो डॉट 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 दिखा रहे थे। तो वीबीटी में ये सब में थोड़ा प्रॉब्लम था। उस समय कुछ लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो डॉट डॉट है ये 0.3 है, 0.5 है या 0.78 है या क्या है? उम्मीद करते बात समझ में आ रहा होगा हल्का हल्का। Yes. बढ़ू आगे? हाँ सर। ओके, पुराना वीबीटी का बहुत सारा, वीबीटी का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बहुत सारा प्रॉब्लम है, ठीक है। वो उसका कॉन्सेप्ट था कि दो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे तभी वो लोग ओवरलैप करेंगे।
या फिर एक के पास लोन पेयर होना चाहिए, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? हाँ Yes. सर। Yes, sir. तब वो वीबीटी के हिसाब से तो H2 प्लस बनेगा ही नहीं। वो बोला नहीं बाबा हम नहीं बना सकते H2 प्लस को। क्यों? क्योंकि एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक के पास तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो खाली ऑर्बिटल है। और यहाँ पर लोन पेयर अगर होता तो बॉन्ड बना के दिखा देते। तो दोनों के बीच में हम लोग गए थे वीबीटी के पास ये केस लेकर के कि प्लीज इनके बीच में बॉन्ड बना दीजिए। वीबीटी ने साफ मना कर दिया, नो bond cannot be formed because actually there's no lone pair. This is vacant orbital. So for formation of bond, actually 2 unpaired electrons are required. Otherwise, one vacant orbital and 1 lone pair is required so that I can form a coordinate bond. So this is not according to the situation. So there cannot be any bond formation between H2 plus. समझ में आया? हाँ सर। लेकिन जब ये बीमारी अच्छे डॉक्टर के पास गया, और वो अच्छा डॉक्टर था कौन? एमओटी। ठीक है, उसके पास जब ये केस गया ना, उसके पास, हेलो, Yes, sir. अरे बहुत बढ़िया से एकदम, एक इसीलिए तो मॉडर्न कहा मैंने, इतना अच्छा ट्रीटमेंट है एमओटी का कि मैं क्या बोलूं। वो एक एक बारीक से बारीक पॉइंट आउट कर देगा कि क्या प्रॉब्लम है। एनी हाउ, इतना ही नहीं, देखो वीबीटी यहाँ फेल हो गया। एक्चुअली ये नहीं बना सका मतलब ये फेलियर है, ये फेलियर है कौन? वीबीटी। ओके, और भी बहुत सारे फेलियर्स है। हाँ, O2 का जब बॉन्ड बनाने लगे तो O2 का वीबीटी ने ऐसे बना के दिखा दिया। समझ गए? Yes, sir. और O2 को पूछा गया वीबीटी जी कैन यू टेल मी O2 इज पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? तो उसने सारे इलेक्ट्रॉन को चेक किया और बोला डायामैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर है। बट जब हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक से उसको चेक किए और कोई मेथड से, तो इट वाज नॉट डायामैग्नेटिक, It was paramagnetic. O2 वाज पैरामैग्नेटिक। आज से कोई पूछेगा O2 क्या है, तो पैरामैग्नेटिक बताना। यस, O2 इज पैरामैग्नेटिक। Then, but VBT, those who will follow only VBT, they will tell that it is diamagnetic. But when we are checking, then we are getting that it is paramagnetic. It means in O2 there are unpaired electrons. Yes, sir. There are unpaired electrons in O2. Yes, sir. But this VBT is telling that there is no unpaired electron. तो हम वीबीटी को बोलेंगे कि वीबीटी सॉरी टू से बट यू आर रॉन्ग। आपकी थ्योरी में कहीं ना कहीं दिक्कत है। देयर इज सम मिस्टेक इन योर थ्योरी बिकॉज O2 इज नॉट डायामैग्नेटिक, O2 इज पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. एंड इफ यू डोंट नो प्लीज रेफर द केस। और तब जाकर वीबीटी ने रेफर किया केस किसके पास? बोला बाबा मेरा स्कोप से बाहर है, किसके पास जाओ? एमओटी के पास। ठीक है बेटा? हाँ सर। बढ़ू आगे? यस सर। अब देखो ये देखिए, तो देख ले, पहले तो मैं एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे ही देता हूं आपको। ये देखो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 1 है। वाह, पहली बार सुना है कि O2 के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या बताऊं मैं, कहाँ जा रहा है जिंदगी। O2 के अंदर बताओ कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? O2 के अंदर पहले तो ये बताओ, ये एटम है कि मॉलिक्यूल? Molecule. होमो है या हेट्रो? अच्छे कोई रेस्पॉन्ड देने वाले चाहिए मेरे को। इप्सिता? Sir, I think so. It's homo. आई थिंक नहीं, आई थिंक नाम का कोई चीज नहीं होता है। दोनों एटम सेम है, इसका मतलब होमो। Yes, sir. कंफर्म होना है तभी जाके कंपटीशन में सक्सेस होगे। आई थिंक दैट दिस इज द ऑप्शन 3rd विल बी करेक्ट। वो थिंक वाला होने से खत्म कहानी। अच्छा, sir.
आंसर ये है तो है तो है तो है, बस दो ही चीज होता है, यस और नो। आई थिंक वाले लोग, तो इतने लोग जो अपीयर करते हैं ना, उसमें 98% लोग ऐसे ही होते हैं, आई थिंक। वही 2% जिसको मालूम होता है कि यस दिस इज ओनली द आंसर, वही लोग क्रैक करते हैं। चाहे वो IIT हो या मेंस हो या नीट हो या एम्स हो या चिपर हो या जो भी हो, या IAS का कुछ ये हो, या जो भी बनना हो उसको, IPS IAS कोई बड़ा अफसर, जब तक उसमें ये कैपेसिटी नहीं आएगा कि दिस इज ओनली द आंसर, तब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी। जब तक वो 98% के भीड़ में लगा हुआ रहेगा, आई थिंक दिस इज द आंसर, तब उसको अमिताभ भी कितना बार बोलेगा, एक बार सोच लीजिए। आई थिंक ऐसा जुआ मत खेलिए। अगर आंसर मालूम है नहीं तो लाइफलाइन का इस्तेमाल करिए और करेक्ट बताइए। समझ गए बात को? O2 होमो है या हेट्रो? होमो मॉलिक्यूल। इसका एटॉमिसिटी कितना है? 2. एलिमेंट है कि कंपाउंड? Compound. गुड। जिसने कंपाउंड कहा है, जितने कंपाउंड कहा है कंपाउंड है। अरे जब सारे एटम सेम होते हैं तो उस चीज को एलिमेंट कहते हैं। हाँ. एलिमेंट है। हाँ, हाँ. ये एलिमेंट है। मुझे हंसी आ रही है, तरस आ रहा है जिसने O2 को कंपाउंड बोला है। होमो मॉलिक्यूल है, होमो मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाता है। किसने कहा कंपाउंड? हेलो बेटा, हेलो। हेलो बेटा, कंपाउंड किसने कहा? एक बार मेरे से बात करो। ठीक है, O2 कंपाउंड है कि एलिमेंट है? बोलो। एलिमेंट। हाँ, एलिमेंट है। चलो हम देखते हैं। आज देखो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, आज देख बहुत बड़ा खेल खत्म करने वाले हैं। ये VBT बोला डायामैग्नेटिक है, लेकिन आज हम लोग चैलेंज ले लिए और हमने मशीन में देखा है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पैरामैग्नेटिक है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रेजेंट है। यस ठीक सर. है, बढ़े आगे। यस सर. हाँ सर. चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं। आज ये ऑपरेशन को पूरा क्लियर करते हैं। O2 के अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है? O2 के अंदर 8. और एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। एक ऑक्सीजन 16. तो 2 ऑक्सीजन है, 16 है. 16 इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया बेटा? हाँ यस सर. सर। एटम की बात नहीं कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। यस सर। O2 के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन है। जहां जहां जिसको गलतियां अपनी समझ में आ रही है सुधारते जाओ, और 98% वाली भीड़ से हट करके किस परसेंट में आओ? 2%। 2% में आना ही होगा आप लोग को। तो एनी हाउ, अब बताइए, मैंने आपको एक दिया था, यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया था कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया तो थोड़ा बैलेंस गड़बड़ा गया कि नहीं? हाँ यस सर. सर। तो हमको कौन सा ऑर्डर फॉलो करना होगा? पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा वाला. दूसरा वाला। तो अब देखो हम भरने लगते हैं। देखो 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 16 इलेक्ट्रॉन को भरना है। मैं भर रहा हूं, मैं 16 इलेक्ट्रॉन को भर रहा हूं। देखो हाँ 1 सर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारा अबव प्रिंसिपल काम करेगा, हुंस रूल काम करेगा, सब अपना अपना काम करेगा। देखिए मैंने कितना भर दिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Did you understand? Yes sir. Don't you think that here electrons are paired? Yes sir. Paired, 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 paired. ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर ये अनपेयर्ड है? हाँ सर. ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ भी अनपेयर्ड है? हाँ, इसमें एक देने का क्या था? कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन में? 2. अब जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बताइए अनपेयर्ड जब इलेक्ट्रॉन है O2 में तो पैरामैग्नेटिक हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर. सर।
इसीलिए वो डायमैग्नेटिक नहीं है। इसका मतलब ये आपका प्रॉब्लम किसने सॉल्व किया, वीबीटी ने या एमओटी ने? एमओटी ने। या किस पर विश्वास ज्यादा है, वीबीटी में या एमओटी में? एमओटी। हाँ, अब बढ़ू आगे। हाँ सर। चलिए, अब एक और चीज है, एक तो मैग्नेटिक नेचर बता दिया, दूसरा देखो ये बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कितने बॉन्ड्स। तो उसके लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि भाई बॉन्ड बनाने वाले लोग हाथ उठाओ। जैसे होता है ना कि ये वाला वे फलाना जगह हम लोग को चलो पिकनिक में जाना है, 100 जन है, कितने लोग पिकनिक में जाना है हाथ उठाओ। पता चला 90 जन उठाया। कितना लोग को नहीं जाना है, तो 10 जन। तो बताइए मीटिंग जो पिकनिक है वो कैंसिल होगा या होगा पिकनिक? होगा। क्यों? क्योंकि पिकनिक में जाने मेजोरिटी है। वाले लोग की संख्या ज्यादा थी। समझ में आया बात? हाँ सर। ओके, तो अब देखिए बेटा, जस्ट सी वी वांट टू नो द बॉन्ड, और कहाँ गया वो बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एनबी, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय व्हाट, 2। एम आई क्लियर? हाँ यस सर। सर। ठीक है। तो और आप इससे पहले जो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो वीडियो है आप लोग को मैं अपलोड कर दिया हूं, आप लोग उसको पूरा पढ़ोगे अच्छा से, ठीक है बेटा? ओके सर। आप लोग पढ़ा, आप लोग उसको ना स्पीड कर लीजिए, 1.5 का स्पीड में देखिए, तो जो 40 मिनट का है वो 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। समझ गए? हाँ सर। ऐसा करके देखा कीजिए बेटा, तो आप जरूर देखा कीजिए। तो एनी हाउ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो बेटा, आगे बढ़ रहा हूँ और अब पता कर रहा हूँ O2 के अंदर बॉन्ड बनाने वाले लोग कितने हैं। लेट मी फाइंड आउट, लेट मी डू द सर्वे। सो दिस इज द सर्वे, दिस इज द सर्वे। सी ग्रीन कलर बॉन्डिंग। ओके, तो देखिए 2, 4, 6, 8 और 10। कितने लोग बोल रहे हैं बॉन्ड बनना चाहिए O2 में? 10। हेलो, सर हम बोल रहे सर। कितने लोग बोल रहे हैं कि बॉन्ड बनना चाहिए? सर मी सर। हाँ, आई से सर बाउंड बनना चाहिए। अरे बाबा मैं तुम्हारी राय नहीं जानना चाह रहा हूं, मैं इस सर्वे के हिसाब से बोल रहा हूं कितने इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं कि बॉन्ड बनना चाहिए। ग्रीन कलर वाला पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 कहाँ है? जस्ट 1 मिनट वेट सर। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 6, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल कितने हो गए? 10। 10 हाँ इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ सर। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि भाई बहुत इतने लोग हैं, आप लोग 16 जन हैं, बताओ कितने लोग चाहते हो कि बॉन्ड बने? तो 10 जन ने हाथ उठाया कि बॉन्ड बनना चाहिए। हाँ सर। कितने लोग ने विरोध किया है? जैसे पार्लियामेंट में पक्ष विपक्ष होता है ना। 6। या आप सर्वे देखिए, यू सी द सर्वे, सी द रिपोर्ट। देखिए जितने भी रेड कलर के जोन हैं ये बोलते हैं बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। ओके, हाँ सर। तो कितने लोग विरोध कर रहे हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर टेलिंग दैट बॉन्ड शुड नॉट बी फॉर्म? 6 electrons. 2 over here, 2 over here, 4 and 5 and 6. So out of 16, 10 people told, 10 electron told that there should be bond between oxygen, and 6 people told that there should not be any bond between oxygen atoms. Did you understand? Yes sir. Now let me solve this problem. Bond order 10 minus 6 divided by 2. Exactly. Bond order will be 2. So bond order will be, tell me, 10 minus 6 how much? 4 2. divided by 2. Why we are divided by 2? Because 2 electron makes 2. one complete bond. 2 electron makes one complete bond. Okay sir. So if 4 electrons are ready to make a bond, it means 2
two bonds will be formed between oxygen atom. Did you understand, children? Yes, sir. Yes, sir. किसको किसको बात समझ में आ गई? बात उठाओ, हाथ उठाओ. मेरे को सर. ओके, वेरी नाइस. अब बना लोगे आप लोग? हाँ सर. O2 डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक. वेरी नाइस. चलो मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी से बनाओगे इसका. Ne2 हाँ, का सर. बनाओ जल्दी से इसका बॉन्ड ऑर्डर पता करके बताओ मेरे को जल्दी से. जल्दी से सर. NB निकालो, Na निकालो, डिवाइडेड बाय 2 करो जल्दी. Any. हेल्प चाहिए? हेल्प चाहिए? Zero. Sir, Help I चाहिए? think zero, sir. हेल्प. हाँ, नियॉन, सर. एक नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 के अंदर 20 हो गया कि नहीं? 20. हाँ सर. और अगर हम 20 को भरते जाएं तो देखो यहां तक 16 तो भरे ही हम लोग, 16 तक भर दिए. हाँ. 16, सर. हाँ 16 भर दिए. 16 के बाद ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20. समझ में आई बात? हाँ सर. ठीक है. अब नियॉन के अंदर बॉन्ड बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? तो देखो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू, कितने लोग बोल रहे हैं कि बनना चाहिए? बीस में से कितने लोग बोल रहे हैं कि बनना चाहिए? 10. 10. कितने लोग बोल रहे हैं नहीं बनना चाहिए? 10. 10. 10 डिवाइडेड बाय 2, 0. कोई है ये नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन बनेगा क्या? अरे यार. नहीं सर. इसीलिए आज तक बेचारा नियॉन अकेले ही रहता है. हाँ सर. इसीलिए इसका एटॉमिसिटी, इसी के लिए इसका एटॉमिसिटी 1 होता है, क्योंकि नियॉन के अंदर ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जो बॉन्ड बनाना चाहते हैं. हाँ सर. इसलिए जाओ, तुम सोसाइटी में जाओ, लेकिन तुमसे कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बोल दिया है कि देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन नियॉन. किसको किसको बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सर. ओके, चलो F2 का बताओ बनेगा कि नहीं? F2 Yes. जल्दी बनाओ, बनेगा जल्दी कि- जल्दी जल्दी. जल्दी बनाओ, मेरे पास टाइम नहीं है. हाँ सर, बना रही हूँ. इसमें बनाने का क्या बात है? एक F के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होता है, 9 9 18 हुआ कि नहीं? हाँ सर. हाँ, तब तो 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको हटा दो यहां से, इन लोग को हटा दो, इनको Sir, हटाओ. it will be 1, sir. या डेफिनेटली, इसमें इतना सोच विचार करना ही नहीं है. 18 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको हटाओ. समझ में आ रहा बात? हाँ हाँ सर. sir. हाँ, 1 तो होगा. सीधा बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो यहाँ पर. F2 बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्ड 1. इक्वल टू 18 इलेक्ट्रॉन में. बोलो रे, किसको किसको बॉन्ड बनाने का मन है? बोलो. 10. किसको को तोड़ने का मन है? 8. तोड़ दे भैया, तोड़ दे, जाओ, मैं क्या कर सकता हूँ. तो फिर 10 भी minus देखा 8 by 2. सर, बॉन्ड ऑर्डर हाँ. 1 है. 1. इसीलिए तो F और F के बीच में मैं सिंगल 2 बॉन्ड by बनाते 2 रहता हूँ. is 1. आया हाँ, बात सर. समझ में? आया बात समझ हाँ. में? हाँ सर. ठीक है, जल्दी से बताओ. HE नॉट HE, H2 प्लस का बताओ, जल्दी बताओ बॉन्ड ऑर्डर, जल्दी. वी डोंट हैव मच टाइम. Yes, sir. Yes, sir. जल्दी करो बेटा, जल्दी करो. सर, 1 है तो. हाँ, कितना बेटा? है ना दिक्कत? VBT क्या बोला था कि भैया मेरे बस का बात नहीं है, बॉन्ड बनेगा ही नहीं. हाँ वही तो सर. वही तो, लेकिन ध्यान सुनो, H 2 बार H है कि नहीं? हाँ हाँ, है सर. तो एक H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, हाँ सर. लेकिन पॉजिटिव साइन है, मतलब 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन बेचारा, उसको जैसे ही बोला रे तुमको बॉन्ड बनाना है, वो भाग गया छोड़ के, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन बचा है बस. प्लस का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन.
H2 रहता तब ना 2 इलेक्ट्रॉन होता। हाँ सर। 1 प्लस है मतलब 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। हाँ ठीक है, और वो एक हाँ, सर। इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन कहां पर रहेगा? जब उसको सर्वे में डालेंगे हम लोग, सर्वे रिपोर्ट में, तो वो इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है, कम है। ये देखिए, ऐसा है सिचुएशन। समझ में आई बात? खाली की पूरी ट्रेन खाली है, पूरी ट्रेन खाली है, केवल पहले वाले में 1 इलेक्ट्रॉन बंदा बैठा हुआ है। समझ में आई बात? हाँ हाँ सर। सर। तो आइए निकाल के देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर बनेगा कि नहीं बनेगा। वीबीटी तो बोल दिया नहीं बनेगा बॉन्ड, लेकिन आइए एमओटी का सहारा लेते हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। बॉन्ड बनेगा कैसे नहीं, लेट मी सी। इसलिए H2+, डोंट फील अनहैप्पी। हमारी टीम आपके पास है, फील हैप्पी। अभी बताते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। NB माइनस Na डिवाइडेड बाय 2, बॉन्ड ऑर्डर। NB, कितने लोग समर्थन में आए कि बॉन्ड बनना चाहिए? 1। Am I correct? हाँ सर। कितने लोग बोला बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए? 0 कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। डिवाइडेड बाय 2, हाँ 1/2 मतलब 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया कि नहीं आया? हाँ आया सर। सर। वीबीटी तो साफ मना कर दिया, तक बॉन्ड बनेगा ही नहीं। एटलीस्ट एमओटी ने थोड़ा तो हौसला दिया कि यस बन सकता है, लेकिन वो बॉन्ड कितना बनेगा? 1 पूरा नहीं बनेगा, 0.5 बनेगा, लेकिन बनेगा। यस सर। उम्मीद करते मेरी बातें समझ में आई होंगी। हाँ सर। ठीक है, इन तमाम बातों को हम लोग 3 बजे वाली क्लास में फिर जारी रखेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी लोग 3 बजे वाले में शामिल हो जाइएगा बेटा, क्योंकि 4 बजे से शायद फिजिक्स का क्लास चल रहा है, 2-3 रोज थोड़ा चलेगा, सर बाहर जाएंगे कहीं पर। ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा के जाएंगे वो। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ हाँ तो सर। आप लोग अपने अपने से बोलिएगा कि 3 बजे वाला जो ज्वाइनिंग आईडी है वो भेजिए। तो आप लोग दोनों ग्रुप 3 बजे में शामिल हो जाइए बेटा। ओके, ओके सर। चलो चलो, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय एवरीबॉडी, बाय बाय, थैंक यू बाय बाय। सर।